Welcome to our special coverage, Battleground Rajasthan, Citizens Manifesto of Rajasthan. With us, as we have seen in the past, in all other broadcasts, eclectic, aggressive and very curious audience. यही वो मौका है जब जनता के सामने एक अवसर होता है कि वो अपने नेता से कुछ सवाल कर सके। क्या जो जनता की उम्मीदें हैं, क्या हमारे नेता, चाहे वो बीजेपी से या कांग्रेस से हों, क्या वो उन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं इस चुनाव प्रचार के दौरान? Now we have Sachin Pilot. Many believe he could be the chief ministerial candidate. The next chief minister in waiting, perhaps, I don't know, and maybe Sachin Pilot will be able to answer that question. But certainly Sachin Pilot in his earlier avatar, as a union minister, as a young gun, has promised a lot for the Congress party. Are those promises going to be delivered? This battleground state of Rajasthan. Sachin, welcome, warm welcome. Thank you very much. To you. मैं बड़ी देर से इस जनता के सामने मैं चर्चा कर रहा था, वाद विवाद कर रहा था, तो एक चीज बड़ी खुल के सामने आई। एक तो यहां पर सबने माना कि राजस्थान की जो चुनावी असलियत है वो है जाति। फर्स्ट टेल मी, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? दैट कास्ट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर्स इन राजस्थान, मोर सो परहैप्स मोर प्रोनाउंस्ड देन इन अदर स्टेट्स. You think it's a welcome sign for Indian democracy? You see, in India's electoral politics, communities and castes may be relevant, perhaps even important in some areas, but to my mind, they're not pivotal to how a party will perform. In India, we have forwards, backwards, Dalits, it doesn't matter. Point is that a state as big as Rajasthan has a population of 7 crore people. And the mandate of the people, I think, will be sweeping across state, across communities, across religions, because what matters to the people are the issues that affect their everyday life. You know, we were in conversation with the BJP President Amit Shah, and we asked him clearly whether it was the BJP which was guilty of excessive promotion of caste, and his response was, no, हम नहीं कर रहे, ये तो कांग्रेस पार्टी कर रही है. अब मुझको ये बताइए कि भूपेन जी, एक सेकंड. हाँ. हनुमान जी की जाति किसने बताई? योगी जी ने. किस नेता ने? I have never in my life ever even thought that Lord Hanuman would even have a caste. The fact that the leaders of the BJP are talking about caste, community, religion so blatantly and so obviously disrupting our thinking process is absolutely wrong. एक यहाँ पर साहब खड़े हैं, जरा सा आगे आइए, जरा सा आगे आइए. ये भाई साहब बड़ा जो है कि ये उत्तेजित हो रहे थे. अब नाउ देखिए सचिन पायलट जी का क्या कहना है. उनका बड़ा स्पष्ट कहना है कि साहब भगवान को ही आपने जाति में बांध दिया. आप मुझे बताइए, बताओ नागरिक, छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस सब छोड़ दीजिए, बताओ नागरिक, क्या आपको लगता है सही है भगवान को जाति में बांध देना? नहीं, बिल्कुल विकास की बात करो ना. आप विकास पे बात करनी चाहिए. 4.5 साल में मोदी जी को राम मंदिर याद आ रहा है. सीता माता रो रही भाजपा के काम से, करोड़ों रुपए खा गए मेरे पति के नाम से, और अब राम याद आ रहे हैं इनको शर्म आने की बात है. हनुमान जी याद आ रहे हैं इनको. अच्छा एक बात बताइए, जरा सा मुझे जरा समझाइए कि यहां पर ये कहना तो बड़ा अच्छा है कि 4.5 साल से लोगों ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोगों के लिए क्या जरूरी है कि पायलट साहब विकास, रोजगार, महिला सिक्योरिटी उसकी बात करें कि पायलट साहब भी जोशी जी की तरह ये पोजीशन ले राम मंदिर बनना चाहिए? नहीं, राम मंदिर जरूरी है कि राम के नाम पर रोटी जरूरी है? राम या रोटी, क्या जरूरी है? रोटी जरूरी है. तो फिर आप सब लोग क्यों अपने आप को ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां पर आप नेताओं द्वारा बरगला दिए जा रहे हैं? नेता आपको बरगला रहा है, यह है कि नहीं? ये सही बात. You are 100% right. It is the people who give that perception to the netas that they can be fiddled with, they can be fooled. But Sachin, you are a young leader, young gun of the Congress party. Are you in a position to make a break from this kind of politics which is based on religion, which is based on polarization? What is your agenda for the people of Rajasthan? Okay, Rajasthan is a state that voted for Vasundhara ji 5 years ago with a lot of hope and expectations. She got 165 MLAs out of 200. It's never happened before. I think she's in some sense betrayed the trust of those people, because for 5 long years, the kind of arrogance this government functioned with, there was no interface, communication, interaction with the common people. For the first time in Rajasthan, farmers were forced to commit suicide. There are 12 rapes every day in Rajasthan, and we have a woman chief minister. 12 rapes every day? 12 rapes every day, and this is Government of India figures. Point I'm trying to make is that I don't think anybody with such a large mandate should have been so irresponsible. And we in the Congress party certainly want to break out of this dogmatic politics of community, caste, religion. अच्छा, आप लोगों से पूछूं, देखिए सचिन जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं.
क्या कांग्रेस पार्टी को, भाई नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा है, हमें पता है, वसुंधरा राजे जी राजस्थान में बीजेपी का चेहरा है, ये हमें पता है। क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक चेहरा घोषित करना चाहिए था कि नहीं? करना चाहिए था ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरा मैटर करता है क्या? चेहरा मैटर करता है? Introduce yourself. Yeah, myself Santosh Pradhan. I'm from Odisha, Odisha. Lord Jagannath state. You have a big face in your state. So, Naveen Patnaik. Would the Congress have improved its performance? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, Mr. Pilot was the face of this. मैं ये बोलना चाहता हूँ 120 करोड़ का देश है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो नेता होंगे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 543 है, और मैं ये समझता हूँ कि जितने 543 एमपीज है सब में ये काबिलियत है, वो देश चला सकते हैं, वो पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। तो इसीलिए एवरी एमएलए आर इम्पोर्टेंट, एवरी एमपीज आर इम्पोर्टेंट, चेहरा डजंट मैटर एट ऑल। डजंट मैटर, चलिए दैट्स अ गुड वे टू लुक एट इट। चेहरा डजंट मैटर, बट आई वंडर, एक सेकंड आ रहा हूं मैं। देखिए सवाल ये है कि भाई बीजेपी बार बार ये कहती है कि बीजेपी बनाम क्वेश्चन मार्क कि साहब दूसरी तरफ तो क्वेश्चन मार्क है। ये जो सवालिया निशान है भाई साहब, आप 40 किलोमीटर दूर से चल के आए आपके दर्शन के लिए, 40 किलोमीटर से चल के आने के बाद ये जो सवालिया निशान बीजेपी लगाती है कि दूसरी ओर कौन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस का कभी भी सफाया नहीं होता, लेकिन रिजर्वेशन इसका वाकई में सफाया करवा देगा। ये कांग्रेस ने जो रिजर्वेशन दिया है, किसको? एक मिनट बोलूं, कांग्रेस ने जो रिजर्वेशन चालू करा है, लोग बाग जो जनरल उम्मीदवार है वो बीजेपी से आस लगा के बैठा है, अटल जी से लगाई है, मोदी से लगाई है। आने वाले टाइम पे इसकी कोई तीसरी पार्टी होगी, ना बीजेपी रहेगी ना कांग्रेस रहेगी, अगर रिजर्वेशन का सही उपाय नहीं किया तो। द क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन, सचिन जी, क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन, और हिंदी में हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। एक ऐसी धारणा बनी हुई है पायलट जी कि बीजेपी तो रिजर्वेशन का क्वेश्चन ठीक से नहीं हैंडल कर पा रही है। कांग्रेस की इस पे क्या राय है? एक और आप बात करते हैं किसानों को फार्म लोन वेवर हो जाए, दूसरी ओर रिजर्वेशन, वेयर डज द कांग्रेस स्टैंड ऑन दिस? कि कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है, और कम से कम राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूं आपको। संविधान में जो प्रावधान है, जिन लोगों को आरक्षण संविधान में दिया है उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा तबका है जो आज भी वंचित है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अगर आप किसी वर्ग में पैदा नहीं हुए तो आपको सरकार की सहायता ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने राजस्थान के अंदर जो सो कॉल्ड अगड़ी जातियां हैं, फॉरवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनके लिए 14% का आरक्षण होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने पहले भी स्टैंड लिया है। और देखिए आरक्षण क्या है? आरक्षण है स्कूल, कॉलेज और नौकरियों में लोगों को एक रिजर्वेशन मिले ताकि उनका हक मिल जाए उनको। मैं समझता हूं दिक्कत तब पैदा होती है जब सप्लाई बहुत कम है। कॉलेज में 50 सीटें, मांगने वाले 5000, आरक्षण होगा, मन में मनमुटाव आएगा। अगर हम लोग सप्लाई इतनी बढ़ा दें कि नौकरी, स्कूल, कॉलेज में इतने अच्छी क्वालिटी के सीट्स अवेलेबल हो जाएं, तो ये लोगों के अंदर आपस में आक्रोश खत्म होगा। अगर डिमांड ज्यादा कम है तभी दिक्कत पैदा होती है। डू यू एग्री विद दैट कि ये डिमांड और सप्लाई का सवाल है ये, कि कुछ जो कि आप खड़ी हो सकती हैं and just introduce yourself. There are some people who have been left behind in the economic ladder, so therefore it's important. So Mr. Pilot says let's give it to the economically impoverished even within the Savarn community. Will that lead to improvement of the situation या वो situation खराब करेगी? Yes. So I'm Natasha Chaudia. I'm the chairperson Flow Ficky Ladies Organization. जहाँ पे आरक्षण की बात है, वहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ और पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अगर हम आरक्षण कर रहे हैं तो क्या जो केपेबल लोग हैं उनको वो चीज, वो जगह मिल रही है या वो उससे वंचित रह जा रहे हैं? Is it being misused? Is that your question? Yeah. Let's just take a couple of questions. Yeah. In continuation to what Natasha said, 30%, 36% वाला SC, ST रिजर्व कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है और जनरल कैटेगरी वाला 80% वाला भी क्वालिफाई नहीं करता है। उसके ऊपर क्या कहना है? May I put it this way, sir? There was a feeling when the UPA was in power that the Congress party was leading one of the most corrupt regimes. Now I'm seeing same questions are being raised against Vasundhara Raje. What is the stand of the Congress party specifically when it comes to corruption? जी, आप राजस्थान का इतिहास देख लीजिए, यहाँ के लोग विश्वास करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं, इससे छप्पर फाड़ के देते हैं हमेशा, और इस बार भी देंगे हमारे को, आप चिंता मत इस बार भी करो। देंगे आपको। लेकिन जब विश्वास किसी के ऊपर किया तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर जबरदस्त करप्शन ना हुआ हो। और दुख की बात यह है कि जो प्रदेश की मुखिया हैं
बजाय इसके अगर कहीं कोई करप्शन होता भी है, उस पर अंकुश लगाने की जगह उन लोगों को प्रोत्साहित किया है, उन अधिकारियों को, नेताओं को, अफसरों को प्रमोट किया है। तो परसेप्शन ये हुआ कि आप करप्शन करो, आपकी चोरी पकड़ी भी जाएगी, तब भी आपको बचाने वाले बैठे हैं ऊपर, उससे लोगों का मनोबल टूटता है। Rajan, does the Congress have the face today? In 2000 from 2004 to 2014, the Congress party was described as a party which was perhaps the most corrupt government in the history of independent India. क्या कांग्रेस ने वो काले क्या अब धो दिया क्या करप्शन का? जहां तक करप्शन की बात है, जैसे एक पॉपुलर हमारे यहाँ कहावत है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, तो आई थिंक वेदर इट्स अ कांग्रेस और द बीजेपी, उसमें देयर इज नॉट मच डिस्टिंक्शन। बट सिंस सचिन इज हियर, देयर इज वन क्वेश्चन दैट आई लाइक टू आस्क। राज्य में कई लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पिछले 5 साल बहुत आराम से बैठी रही, एक जिम्मेदार विपक्ष की या एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका जो उसे करनी चाहिए थी वो नहीं करी। मैं 2 स्पेसिफिक चीजों के ऊपर कहूंगा। फार्मर्स में पहली बार ये हुआ, बहुत मतलब पूरे राजस्थान के इतिहास में एक तरह से, कि सुसाइड्स हुए, लेकिन हमने नहीं देखा कि कांग्रेस ने इवन फार्मर्स के मुद्दों के ऊपर कोई बहुत बड़े आंदोलन किए हुए। इट टुक द लेफ्ट पार्टीज इन राजस्थान टू एक्चुअली रेज अ बिग एजिटेशन ऑन दैट इश्यू। दूसरी बात, जो ये पोलराइजेशन की राजनीति राजस्थान में पहली बार इतनी जबरदस्त तरीके से खेली गई है। हमने देखा मॉब लिंचिंग, जैसे सचिन ने कहा कि ये शब्द भी शायद लोगों को नहीं मालूम था, और स्टेट के अंदर तो हमने एक के बाद एक कई बार देखा। लेकिन कहीं पे ये अफसोस रहा बहुत से लोगों को कि कांग्रेस को जिस आक्रामकता के साथ खड़े होना था उनके खिलाफ, उतनी आक्रामकता नहीं दिखी, और कहीं ना कहीं इवन उन परिवारों को, उन मुस्लिम परिवारों को जो मदद देनी चाहिए थी, उनके घरों पे जाना चाहिए था, वो भी नहीं दिखाई दिया। तो कहीं ये सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या है, राजन महान साहब एक पूर्व पत्रकार हैं, और मैंने अक्सर देखा है भूपेन, जो अधिकारी होते हैं जब नौकरी करते हैं ना, तब कुछ बोलते नहीं है, रिटायरमेंट के अगले दिन वो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। जो पत्रकार होते हैं, उनका भी यही काम है। मैं जवाब देता हूँ। पत्रकार होते हैं तो जब पत्रकारिता करते हैं तो बहुत सारी बातें बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन जब पत्रकारिता छोड़ देते हैं तो कमरे में बैठकर टिप्पणी करना बहुत आसान है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं क्योंकि उन्होंने इस बात को टच किया है। आपने कहा लेफ्ट पार्टीज ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया था। राजन महान साहब, 2013 दिसंबर में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी। आज से ठीक 5 साल पहले, इन 60 महीनों में 2014 जनवरी में इस कलेक्ट्रेट के सामने हमने पदयात्रा कर सरकार के घुटने टेके थे जब वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन करना चाहते थे। एक मिनट। और वसुंधरा जी का क्षेत्र झालावाड़, उस झालावाड़ जिले में 100 किलोमीटर की किसान न्याय यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। वसुंधरा जी ने बिजली के दाम बढ़ाए किसानों के, हमने हर ब्लॉक पर धरने दिए, भूख हड़ताल किया, घेराव किया, पदयात्रा करी और सरकार को मजबूर किया। 165 विधायक वाली सरकार, घमंड वाली सरकार के घुटने टेके हैं। और आप वामपंथी दलों की बात कर रहे हो, अगर वामपंथी दलों के दबाव में सरकार काम करती तो आज वामपंथी का चेहरा दिखाई क्यों नहीं देता है। आज कांग्रेस दोबारा इसलिए उठी है राजन जी, क्योंकि हम लोगों ने इन बाजों पे लाठी खाई है, जेलों में गए हैं, केस हुए हमारे ऊपर। और सुन लीजिए, एक सेकंड। मैं और जहां कांग्रेस पार्टी सिर्फ 21 सीट पे सिमट गई थी, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। Which is this desire of the Congress party, Mr. Pilot, to waive off farm loans? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ये जो फार्म लोन वेवर है सर, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, आई नो भुवन, आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि ये किसान जो ऋण माफी है, मुद्दा है, नहीं ऋण माफी है, इट इज अ economically not a good decision. No, I'm not saying that. A lot of people say this. Is it just मैं बताता हूं, elections? Not at all. You see, now here's what it is. ये शुरुआत कहां से हुई? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भाई देश की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, जो 1.5, 2, 3 बीघे में किसान खेती करता है उसकी आज हालत ठीक नहीं है, उसको मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देश भर में किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है भूल जाइए, पूरे देश भर में भारत सरकार 72,000 करोड़ रुपए का किसान का ऋण माफ करेगी। एक कदम उठाया। एक मिनट। उसके बाद मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए तो वहां उत्तर प्रदेश में कहा हमको वोट दो, हम आपका ऋण माफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। तो राजस्थान के लोगों ने कहा कि यार ये 2 राज्य भाजपा शासित प्रदेश हैं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, यहां के किसानों ने क्या पाप किया है,
तो जब आप पक्षपात करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर किसान आज दब रहा है, कुचला हुआ है, खाद, बीज, तेल सब महंगा हो गया है और किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इस देश का जो अन्नदाता है, अगर वो अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है, तो मैं समझता हूं देश में कोई ऐसा नहीं होगा जो बोले किसान की मदद मत करो। किसान की मदद करनी पड़ेगी। और सुनिए, देश भर में किसान के नाम पर राजनीति बहुत होती है, लेकिन असली में किसान की जेब में पैसा ज्यादा जाए, अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज मन बना लें, तब हम देश की सचमुच सेवा कर रहे हैं। क्या किसान की जेब में जा रहा है क्या? अब यहाँ पर कुछ किसान, आप लोग किसानी से बैठे हुए हैं, किसान की जेब में जा रहा है क्या पैसा दादा? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा डिजिटल भारत, सब कुछ डिजिटली जाएगा, अकाउंट में सब कुछ डिजिटली चला जाएगा। जा रहा है, डिजिटली जा रहा है पैसा, ये बताइए। सर नमस्कार, अनिल चतुर्वेदी एडवोकेट, संयोजक सर्व समाज संघर्ष समिति। आपने सबके लिए किया, हमारे लिए नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। SC/ST एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी के साथ साथ आपने भी मेजे थपथपाकर संसद में उस नया अमेंडमेंट और नया संशोधन किया। 1 मिनट ओनली, संशोधन किया, आप भी उसमें साथ थे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही क्या आपको पता है, राजस्थान में नोटा प्रचार कार्यालय खुल गए हैं और नोटा का प्रचार हो रहा है। दुनिया, जनता, मतदाता नोटा की तरफ क्यों जा रही है? मुझे लगता है इनडायरेक्टली आपको उसका फायदा हो रहा है, ना कि बीजेपी की अकर्मण्यता का। रिजर्वेशन अगर अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, अगर वो चाहे तो पूरे संविधान को दोबारा लिख सकती है। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। और सुनिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस देश में आज लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको रहने को घर नहीं है, उनको आरक्षण की जरूरत है। हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़े वंचित लोगों को सहायता मिल रही है, मिलनी चाहिए, लेकिन अगर और कोई डिजर्व करता है तो उसको भी मिलनी चाहिए। One question, the more I'm listening to Sachin Pilot, to Pakshikar ji, I'm just thinking, would the Congress party's interests not have been better served if you make a clean break from the, like CP Joshi, उन्होंने एक बयान दिया, देखिए फंस गई कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत वो कुछ कहते हैं, फंस जाती है कांग्रेस पार्टी। The more I look at this entire old guard of the Congress party, do you not think that maybe it would have been better for the Congress to go in with one person? Yeah, but I think the can I just answer 1 second? 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने ये प्रणाली को अडॉप्ट किया है। हमने कभी भी कोई चेहरा घोषित किया नहीं है, लेकिन इस चुनाव में न जाने आप लोगों को इतनी बेचैनी मैं बताऊं क्यों? Because I think in 2018 sir, India is very different। नहीं तो आपको क्यों हो रही है? जनता को नहीं है, किसी को। अभी किसी ने, अच्छा आप सब लोग बता दीजिए, चेहरा कोई मैटर नहीं करता ना, चेहरा कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर। देखो भूपेन, ऐसा है, सुनो, अभी क्या हुआ, वसुंधरा जी को अपना चेहरा घोषित किया बीजेपी ने। पहले वो भी अमित शाह साहब और उनका बड़ा एक कोल्ड वॉर चला लंबे समय तक, और ये बच्चा जानता है कि अमित शाह जी और वसुंधरा जी की बिल्कुल बनती नहीं आपस में। छुपाने की बात नहीं, कुछ शर्माने की बात नहीं। तो डेली आजकल लेकिन शत नमन कर रहे हैं अमित शाह जी को, सब जानते हैं, आप किसी से पूछ लो। ट्विटर पे एवरी डे शी इज डूइंग हर प्रणाम। भाई वो ट्विटर पे कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन 5 साल बनी नहीं। एनीवे, कोई बात, उनका व्यक्तिगत आपस मामला हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 5 साल पहले मुझको यहां अध्यक्ष बनाकर भेजा। हमारी पार्टी में 6, 8, 10, 12, 15 ऐसे लोग हैं जो प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं, और हम लोग एक टीम की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा जी ने जोर जबरदस्ती करके अपना नाम डिक्लेयर करवा दिया, तो मैं सोच रहा था कि जो चुनाव लड़ने में अगर वो डिक्लेयर नहीं करते, अब जब वसुंधरा जी का नाम सामने आ गया है, तो जो 1-2% भाजपा के पास फाइट करने का चांस था, वो भी जाता रहा, क्योंकि नाराजगी और निराशा उनके कार्यकाल से है। I was traveling in Madhya Pradesh. Now, you know, we all know Mr. Kamal Nath and the Congress party has promised all kinds of things. The moon. Do you approve? Do you approve? Do you approve? In Rajasthan, क्या राजस्थान में भी क्या गौशाला बनेगी क्या हर डिस्ट्रिक्ट में? हमारे रामगमन पथ बनेगा क्या हर डिस्ट्रिक्ट में? भूपेन जी, पहली बात तो हम लोगों ने जिस पे फोकस किया है, आपको जानकर खुशी होगी भूपेन जी, हमने कहा कि सरकार कांग्रेस की बन गई तो राजस्थान में अगर जो बच्ची पैदा होगी, उसके जन्म से लेके अंत तक वो जितना पढ़ना चाहे, जहां पढ़ना चाहे, सरकार उसका खर्चा देगी। हमने बोला। दूसरा, हमने कहा कि जो किसान खेती करता है और उसकी उम्र हो जाती है, कभी कभी जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनका घर वाले देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो किसान जो बुजुर्ग हो जाएगा उसकी हम पेंशन बांधेंगे, वृद्ध किसान पेंशन बांधेंगे। हम लोगों ने, राजस्थान में कोई नई परंपरा नहीं है, हमारे यहां बहुत सी गौशाला है और लोग मन से अपने हृदय के भीतर से उसकी मदद करते हैं, अनुदान देते हैं, चारा पानी देते हैं। तो हम लोगों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अभी हिंगोनिया गौशाला है जयपुर के पास, साल भर पहले यहां 3000 गाय तड़प के मर गई।
चारा पानी मिला नहीं, हम लोगों ने जाके सेवा करी उनकी, इसलिए नहीं कि हमें वोट चाहिए, लेकिन हमारा मन करता था कि अगर कोई जानवर, खासकर गायों की मौत हो रही है तो बचाएं उनको। यानी कि this election, am I to understand that if the Congress party was to come to power, Congress will not talk about this Mandir Masjid business? We will talk purely on developmental issues. From the day the Congress party assumes office, a single priority will be to create jobs, investments हो, लोगों को रोजगार मिले और किसान पे जो आर्थिक संकट आया है उससे किसान को बाहर लेकर। A lot of young people here have a lot of interesting questions. सर, मेरा नाम सुनील सेठ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए आपका रोड मैप क्या है? युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, वो एक अच्छे शिक्षा संस्थाओं में पढ़े, बिल्कुल, उसके लिए आपका रोड मैप क्या है? देखिए, आज राजस्थान के नौजवानों को जो चुनौती का सामना करना पड़ता है, हमारे यहाँ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जो इंडस्ट्री, जो बिजनेसेस, जो फैक्ट्रीज को टैलेंट चाहिए, हम अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में डिप्लोमा जो दे रहे हैं, वो करिकुलम और एकेडमिक कोर्सेज हैं, वो मेल नहीं खाते हैं। लोगों को जिस प्रकार के ट्रेन नौजवान चाहिए, तो मैंने मैनिफेस्टो में आज कहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को जिस तरह के लड़के लड़कियां चाहिए, वो करिकुलम और कोर्सेज हम अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं ताकि दे बिकम एब्जॉर्ब्ड इनटू द जॉब वर्कफोर्स। ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट हो। Final question then to you, Sachinji, is this. You have adopted a very constructive tone right through this conversation. I just want you, दिल पे हाथ रख के आप इन लोगों का कमिटमेंट दीजिए कि साहब अगर आप सत्ता में आ गए तो 5 साल बाद ऐसा ना हो कि आज जो सवाल वसुंधरा राजे जी की सरकार से पूछ रहे हैं वो कहीं आपकी सरकार से पूछने लगे। देखो भूपेन, यहाँ राजस्थान में लोग अक्सर पूछते हैं इसे कि हर 5 साल जो ये सरकार बदलने का ट्रेंड है, दिल टूट जाता है लोगों कब टूटेगा? तो मैंने कहा इस बार तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगली बार टूट जाएगा जब हम राज करेंगे 5 साल। ओके, थैंक यू सो मच. Thank you so much for joining us, and thanks to all of you for this great audience for having made this into an eclectic conversation. Thank you so much.